हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। विंग्स उड़ान में आपका स्वागत है। हमारी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जो कि है ऑन योर रोल ऑफ आरबीआई। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर सीरीज़ हम एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। जो लोग जेकेपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे विंग्स उड़ान में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि हमारी एक्सपर्टाइज फैकल्टी आपकी क्लासेस ले रही है। सो इट्स वेरी गुड टू गो। एंड सेकेंड थिंग, विंग्स उड़ान एप्लीकेशन पे 5 फुल लेंथ जेकेपीएसआई के पेपर्स अपलोड हो चुके हैं विद एक्सप्लेन्ड आंसर्स, जिसको आप अवेल कर सकते हैं एट जस्ट ₹249। ओके, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड एंड वांट कॉन्टैक्ट, सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, डू कॉन्टैक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The role on your role of RBI, the question number 1 is, when was the RBI was nationalized, or the RBI was nationalized in which year? So हमारा RBI कब nationalize हुआ था? RBI was nationalized in the year 1949, or you can say 1st January 1949. And when was the RBI established? RBI was established in 1935. 1935 RBI established and RBI nationalized in 1949. Okay. Next is the RBI method of credit control may be broadly divided into two parts. So credit control methods of RBI जो है वो किन दो parts में divided है? Open and close, monetary and fiscal, rural and urban, और quantitative and qualitative. So the option D is the right answer on quantitative and qualitative. In quantitative method, if we see, we have two ratios. What are the two ratios? Two policy ratios. This is your CRR and SLR. Then your two policy rates. What are the two policy rates? Bank rate and repo rate, and then your open market operation. So this all comes in quantitative. And what comes in qualitative? Qualitative में we have margin requirement. मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लोन यू आर गेटिंग एंड जो भी आपने मॉर्गेज रखा है उसका जो डिफरेंस है, दैट इज़ योर मार्जिन रिक्वायरमेंट. देन योर मॉरल सुएशन. Moral suasion is basically guidelines of RBI for your commercial banks. अगर inflation है तो there are more restrictions, and अगर deflation है economy में और economy में money supply हमको बढ़ाना है तो there will be liberal lendings. Okay, and the third is your credit rationing. ये तीन आपके qualitative and these are your quantitatives. Okay. Next is moving to question number 3. Consider the following statement regarding measures of central bank for controlling money. Okay. What are the statements? Statement 1, legal reserve ratios and moral suasion are quantitative measures. Okay. Open market operation and rationing of credit is a qualitative measure, and then qualitative measures of RBI are credit rationing, margin requirement and moral suasion. Which of the following statements are not correct? हमें वो statements बताने हैं जो सही नहीं है इसमें. सबसे पहला statement है लीगल रिजर्व रेशियो आपकी दो होती है. मैंने आपको बताया लीगल रिजर्व रेशियोज आपकी और कह लो या टू पॉलिसी रेशियोज कह लो, दैट इज़ योर SLR and CRR. Okay. And moral suasion are quantitative measures. Okay, SLR and CRR are your quantitative measures, but moral suasion is your qualitative measure. Okay, so this statement is wrong. Open market operation and rationing of credit are the qualitative measure. Rationing of credit is a qualitative measure, but open market operation is a quantitative measure. The second statement is also wrong. So which are the statements are not correct? So your 1 and 2 are not correct. Option A is the right answer, because statement 3 is correct. Your qualitative measures are credit rationing, marginal requirement and moral suasion. Okay. Next question. RBI uses the following instruments for quantitative control of credit. Quantitative control of credit, again, cash requirement ratio, yes. Statutory liquidity ratio, yes. Open market ratio, yes. Open market ratio और open market operation, yes. Next is your margin requirement. No, margin requirement किस में आते हैं आपके? Margin requirement आपके आते हैं qualitative measure में. So the correct option is 1, 2 and 3. Question number 5. The Reserve Bank of India bulletin is published every fortnight, month, 6 months or a year. It's a factual question. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बुलेटिन है वो कब पब्लिश किया जाता है? दैट इज़ पब्लिश्ड एवरी मंथ. Okay, that is published every month, or you can say that is published every month between 1st to 5th. 1st to 5th of every month RBI bulletin is published, and your report on currency and finance is published every year. Okay.
क्वेश्चन 6, एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट. सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज योर बैंक रेट, जहाँ पे आरबीआई जो है देयर इज अ सेल एंड परचेज, सॉरी, ओपन मार्केट ऑपरेशन. इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पे यू आर हैविंग सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. ओके. So question 7 is, when did India become member of International Monetary Fund? So it's again a factual question. India कब member बना IMF का? It's in 1947, 1951, 1952 or 1945. So India became a member of IMF in 1945. If go for the date, so it is December 27, 1945. Okay. Coming up to question 7, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी विल इंक्रीज. ओके, मनी सप्लाई इकोनॉमी में हमें इंक्रीज करना है. इफ मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द public deposit currency in the commercial bank, central bank sells government security to the public. Okay, so what we need to do, we need to increase the money supply economy में increase करना है. So money will be borrowed by the government from central bank, this is true. And central bank purchase government securities from the public. अगर central bank purchase कर रहा है government securities, means हम कोई चीज़ purchase कर रहे हैं, so purchase कर रहे हैं, securities लेंगे और money लोगों को दिया जाएगा. So that will increase the money supply. Option 2 is also right. पब्लिक डिपॉजिट करेंसी इन द कमर्शियल बैंक. पब्लिक जब करेंसी कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करेगी तो उससे मनी सप्लाई तो डिक्रीज होगा, मनी जो है वो बैंक में जा रहा है. सो दिस इज नॉट अ राइट. एंड द फोर्थ इज सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक. और जब सेंट्रल बैंक सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक, मीन्स इट इज गिविंग सिक्योरिटी टू द पब्लिक एंड टेकिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 is correct. Okay, so option C is the right answer. So क्वेश्चन 9 इज, विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. मतलब हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मीन्स हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है. सेंट्रल बैंक को एम क्या है? इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है. ओके, बिकॉज लोगों के पास पैसा है, पीपल हैव मनी, सो दे आर डिमांडिंग. सो हमें वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है. सो ऑप्शन ए क्या है? डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो अलॉन्ग विद सेल ऑफ सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओके, सो अगर कैश रिजर्व रेशो को डिक्रीज करते हैं, कैश रिजर्व रेशो को डिक्रीज करने से क्या होगा? सेंट्रल बैंक का जो मनी क्रिएशन पावर है वो इंक्रीज होगा. मतलब बैंक मनी जो है हमारे पास इंक्रीज होगी और इससे हमारी इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी. सो दिस इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन. डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो नहीं होगा. डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो अलॉन्ग विद परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. सो अगेन डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो नहीं होगा. नाउ देयर विल बी इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो. सीआरआर हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब हमारा सीआरआर इंक्रीज करेगा उससे हमारी बैंक मनी जो है वो डिक्रीज होगी. ओके, बैंक का जो कमर्शियल बैंक है पावर ऑफ क्रिएटिंग मनी वो डिक्रीज होगा हमारा, और इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होगी. सो सीआरआर जो है वो तो इंक्रीज ही होगा. नो ओपन मार्केट ऑपरेशन में देयर विल बी सेल ऑफ सिक्योरिटीज और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, हमें ये देखना है. सो सी, जब परचेज ऑफ सिक्योरिटी हो रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक कोई चीज़ परचेज कर रहा है, लोगों से सिक्योरिटीज़ खरीद और कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग सिक्योरिटीज़, व्हाट इज सेल एंड परचेज? दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम कुछ चीज़ एक्सचेंज करते हैं. तो इफ इट इज बाइंग सिक्योरिटीज, परचेजिंग सिक्योरिटीज, सो बाइंग सिक्योरिटीज, सेंट्रल बैंक इज पेइंग सम मनी, और वो जो मनी पे कर रहे हैं उससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है. सो देयर विल बी नो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, देयर विल बी सेल ऑफ सिक्योरिटीज. वो अपनी सिक्योरिटीज जो है वो सेल करेंगे. जब कमर्शियल बैंक या जनरल पब्लिक सिक्योरिटी खरीदेगी तो वो उसको कैश पे करेगी सेंट्रल बैंक को, और इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो कम होगी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो एंड अलॉन्ग विद इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओके, next question, question 10. Which change will RBI undertake when there is recession or depression in the economy? There is recession or depression in the economy means people are not demanding more. There is a less aggregate demand. We need to increase the demand. हमें क्या करना है? डिमांड को इंक्रीज करना है, और डिमांड को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज दी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. आरबीआई का क्या काम है? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीज करना. ओके,
सो राइज इन CRR, हमने देखा अगर इंक्रीज इन CRR होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी. सेल ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन ओपन मार्केट, अगेन अगर सिक्योरिटीज़ की सेल होती है तो उससे मनी सप्लाई इकॉनमी में डिक्रीज होगी. रिडक्शन इन बैंक रेट कौन सा रेट होता है? एट विच कमर्शियल बैंक इज टेकिंग लोन फ्रॉम RBI. Okay, so there will be reduction in bank rate. Again, increase in repo rate. So repo rate is again the rate at which commercial bank is taking loan from RBI. So increase in repo rate से भी money supply जो है वो decrease होगा. So only money supply हमें increase करना है. So that is reduction in bank rate is the right option. Okay. क्वेश्चन 11, द पीरियड फॉर कॉल मनी इज. कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी हमारे पास एक शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट होती है. इंटर बैंक देयर इज लाइक यू कैन से शॉर्ट टर्म फाइनेंस दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड, एंड इंटर बैंक्स जो है वो एक दूसरे से पैसा लेते हैं ऑन द टाइप ऑफ दिस कॉल मनी, एंड द कॉल मनी जिस रेट पे ली जाती है उसे हम बोलते हैं कॉल रेट. ओके. So it is for a short term, it is for the short term period, and the short term period it is for 1 to 14 days. Okay. Next question, question 12. Arrange the following liquid assets in descending order of liquidity. So again, descending order कौन सा होता है? Descending order is that we are going from largest to smallest. बड़े से छोटे पे जाना इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर. सो लिक्विडिटी में इफ वी सी द हाईली लिक्विड एसेट, हम जैसे बोलते हैं हाईली लिक्विड एसेट क्या होता है? दैट इज योर कैश और योर करेंसी इज अ हाईली लिक्विड एसेट दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू एनी अदर एसेट. सो करेंसी नंबर 1 पे आपका करेंसी आएगा. इफ वी गो विद द एलिमिनेशन मेथड, सो हमारे पास ऑप्शन ए एंड बी पे आता है. ओके. नेक्स्ट इज ऑप्शन ए पे है नंबर 2 टाइम डिपॉजिट. सो टाइम डिपॉजिट हमारे हाईली लिक्विड नहीं होते हैं बिकॉज जब उनका मेच्योरिटी टाइम आएगा वो तब भी मेच्योर होंगे. सो ऑप्शन ए इज नॉट अ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. मीन्स योर करेंसी सबसे पहले रहेगा, देन यू हैव योर डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट जो हम डिमांड पे जिनको रिडीम कर सकते हैं, हम अपने डिमांड पे उन्हें मेच्योर कर सकते हैं. देन आफ्टर डिमांड डिपॉजिट यू हैव सेविंग डिपॉजिट. जो भी आपका सेविंग का पैसा है वो भी एक तरह से आपका डिमांड डिपॉजिट जैसा ही होता है कि आपका जब मन हो आप उसे निकलवा सकते हैं. एंड देन इज योर टाइम डिपॉजिट जो कि एक टाइम पे आके ही मेच्योर होगा. ओके. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Now question number 13. Which of the following is not a function of RBI? Okay, now if we are talking about the RBI, so what are the functions of RBI? और इसमें से कौन सा है जो RBI का function नहीं है? Decide bank rate, CRR, SLR from time to time. This is one of the function of RBI. RBI ऐसा करता है. Then opening saving account for general public. This is the function of commercial bank. So this is not a function of RBI. Currency management RBI करता है. It's prescribed the capital adequacy ratio. Yes, this is also true. So what is not a function of RBI? That it does not open account for general public. General public के लिए account कौन खोलता है? हमारा commercial bank. Option B. Question 14. Which one of the following cannot be called an anti-inflationary measure? हमें देखना है कौन से इसमें से anti-inflationary measures हैं. ओके. रेजिंग इन बैंक रेट. बैंक रेट्स कब रेज होते हैं? व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी. हमें मनी सप्लाई को जब हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना हो उस टाइम पे हम बैंक रेट्स को रेज करते हैं. ओके. एंड रेजिंग रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट. रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट योर CRR एंड SLR भी उसी टाइम पे इंक्रीज होते हैं जब हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है सो दैट बैंक का जो मनी क्रिएशन पावर है वो डिक्रीज हो. नेक्स्ट इज परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट. सो सिक्योरिटीज जब हम परचेज करते हैं तो दैट लीड्स टू इंजेक्शन इन मनी सप्लाई. इंजेक्शन इन मनी सप्लाई मीन्स हमारी मनी सप्लाई इससे इंक्रीज होती है. सो दिस इज एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके. Moving up to next question, question number 15. Which of the following bank did not regulated by Reserve Bank of India? Okay, कौन से बैंक को Reserve Bank of India रेगुलेट नहीं करता है? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, IDBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर. सो योर स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है दैट इज नॉट रेगुलेटेड बाय योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम. ओके. Next question, question number 16. Which of the following is not an instrument of credit control by central bank? Okay.
कैश रिजर्व रेशो से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी में, एसएलआर से भी किया जाता है एंड बैंक रेट से भी किया जाता है. मैनेज फ्लोटिंग इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल क्रेडिट इन इकोनॉमी. ओके, सो मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग से हम क्या कंट्रोल करते हैं? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल किया जाता है, और यू कैन से फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई एंड डिमांड्स कंट्रोल होती हैं, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अगर हम ग्राफ में ले आए, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ योर मैनेज फ्लोटिंग, जहाँ पे देर इज़ योर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं, दैट इज सेट योर फॉरेन एक्सचेंज रेट at this quantity. Okay, so this is comes under your managed floating. Question 17, what is the significance of centralized cash reserves with central bank? Okay, हमें क्यों कमर्शियल बैंक्स को जो है अपना कैश रिजर्व सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है? what happens, ऐसा रखना क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग सो क्यों रखना ज़रूरी है? स्टेटमेंट 1 इज फाइनेंशियल एकोमोडेशन बाय आरबीआई इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी फॉर कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल एकोमोडेशन मिलती है आरबीआई से जब इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं. येस, इट इज़ ट्रू. इट एनेबल्स आरबीआई टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक. ओके, जो हमारी सेंट्रलाइज कैश रिजर्व विद सेंट्रल बैंक है वो एनेबल करता है कि वो कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल कर सके. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. देखो, सीआरआर और एसएलआर ऐसे दो रेट्स हैं जिसको बैंक कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है अगर उसे कमर्शियल बैंक की मनी क्रिएशन को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो. ओके, नेक्स्ट इज मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इज रेगुलेटेड. सो येस, अगर आरबीआई जो है वो इन सब रेट्स को मैनेज कर रहा है तो वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है. सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दीज ऑल थ्री आर द सिग्निफिकेंस ऑफ having centralized cash with central bank. Okay, so option is the correct answer. Moving up to next question number 20, which of the following steps will result in control of inflation? हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मीन्स इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या करना है? डिक्रीज करना है. इंक्रीजिंग सीआरआर होगा, डिक्रीजिंग एसएलआर नो. अगर एसएलआर को डिक्रीज किया जाता है तो बैंक का मनी पावर जो है वो इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इज योर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो सिक्योरिटीज़ को अगर हम परचेज कर रहे हैं सो दैट विल लीड टू इंजेक्शन. इससे मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा. इफ़ वी नीड टू डिक्रीज मनी सप्लाई तो वी विल इंक्रीज आर सीआरआर. सो ओनली वन इज राइट आंसर. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ओके, सी सीआरआर और एसएलआर के इंक्रीज होने से बैंक का मनी पावर क्यों डिक्रीज होता है? मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग मनी फॉर योर कमर्शियल बैंक. सो दैट इज योर वन डिवाइडेड बाय योर रेशियोज रिजर्व रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक. सो अगर हमारे ये रेशियोज इंक्रीज होते हैं सो ऑब्वियसली जो हमारे पास बैंक मनी यहाँ जो कमर्शियल बैंक क्रिएट कर रहा है, ये रेशोज़ के इंक्रीज़ होने से ये मनी डिक्रीज़ होगी और ये रेशोज़ के डिक्रीज़ होने से ये मनी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है. वी आर टेकिंग हमारे जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशोज़ हैं दैट इज़ सीआरआर प्लस एसएलआर, उनको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं. सो दैट इज हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम. ओके, क्वेश्चन 19, which one of these facilities is given by RBI to the banks for interbank transaction? Okay, interbank transaction की कौन सी facilities हैं जो RBI ने दी है? First is your RTGS, which is real time gross settlement. Next is SWIFT. SWIFT is your Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, and M-Pesa. ओके, सो इन तीनों में से कौन सी फैसिलिटेट करती है आरबीआई, या इन तीनों को ही फैसिलिटेट करती है? सो आरबीआई फैसिलिटेट्स योर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ओके, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज योर काइंड ऑफ अ ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक. स्विफ्ट जो है दैट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कुछ मेंबर्स इसके सोसाइटी के इसको मैनेज करते हैं. एंड एम पेसा इज योर कैन से द वोडाफोन कंपनी ओन्स दिस. सो व्हाट फैसिलिटेट्स आरबीआई इज योर आरटीजीएस. क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? हमें देखना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू नहीं हैं. ओके, आरबीआई परफॉर्म्स अ फंक्शन एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. येस, आरबीआई परफॉर्म करता है. स्टेटमेंट ए जो है वो ट्रू है. ओनली सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी एंड दैट ऑल्सो नो करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. दिस इज ऑल्सो ट्रू.
सेंट्रल बैंक के पास ही मोनोपोली है करेंसी इशू करने की. RBI also act as lender of last resort to commercial bank. This is also true when there is a situation of bank panic. You can say जहाँ पे सब लोग आके अपनी मनी डिमांड कर रहे हैं. So RBI there act as a lender of last resort for commercial banks. Okay. So all the statements are true. None of the above will be answered because question पूछ रहा है what are the statements that are not true. So ये तीनों statements true हैं. So not true इसमें से एक भी नहीं है. So none of the above. Okay. Question number 21. Which of the following institutes are established by RBI? So it's a factual question. ये हमें याद रखना पड़ेगा. Indira Gandhi Institute for Development and Research, National Institute of Bank Management, both can be neither A nor B. So both of these, Indira Gandhi Institute and National Institute of Bank Management, both are established by RBI. Question 22. Which of the following schemes were formulated by RBI? Again, it's a factual question. So, कौन सी स्कीम्स हैं जो आरबीआई ने फॉर्मुलेट किए हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनधन योजना, बैंकिंग अम्बड्समेंट स्कीम. सो दिस इज योर बैंकिंग अम्बड्समेंट स्कीम ऑफ 2006 जो है आपकी आरबीआई ने फॉर्मुलेट किया है. ओके. Who is the present governor of RBI? Again a factual question. So present governor of RBI is your Shaktikanta Das. Also Shaktikanta Das is the 25th governor of RBI. Okay. And 24th governor was Urjit Patel और उर्जित पटेल ने खुद से रिजाइन करा था saying their family issues. And Raghuram Rajan was your 23rd governor. Okay. Amitav Ghosh had shortest tenure as an RBI governor, so it is true. The given statement is true. Amitav Ghosh has shortest tenure, and the longest tenure we have Sir Bengal Ramarao. Next question is on Basel norms. So Basel norms are related to Basel norms हमारे किससे related होते हैं? शेयर मार्केट से, मनी मार्केट से, बैंकिंग सेक्टर से और इंश्योरेंस सेक्टर से. So the Basel norms are related with our banking sector. Okay. बैंकिंग सेक्टर से रिलेट होते हैं. व्हाट आर द बेसल नॉर्म्स? बेसल नॉर्म्स आर देयर. हमारे बेसल नॉर्म्स किसके लिए होते हैं? हमारे टू कोऑर्डिनेट द बैंकिंग सेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड. कोऑर्डिनेट करता है बैंकिंग सेक्टर्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड. हमारा जो बैंकिंग सेक्टर के रेशियोज जो सेट किए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज डन बाय द बेसल नॉर्म्स. ओके. एंड करंटली वी आर यूजिंग बेसल नॉर्म 3. Identify the given statements are true or false. So given statement क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट नंबर 1 है when government expenditure exceed government revenue, expenditure जो है वो revenue से ज़्यादा है, so जो deficit आता है that is managed by borrowing from RBI and that is called deficit financing. So what is deficit financing? Yes, deficit financing क्या होता है? जब expenditure revenue से ज़्यादा हो और जो difference between expenditure and revenue है वो जब हम RBI से government borrow करके उसको fill कर रही है तो that is deficit financing. Statement 1 is true. Statement 2, the central bank focuses on growth and stability of the economy. Yes, central bank का main focus रहता है that there should be growth and with the growth is with the stability. So statement 2 is also correct. So both the statements are true. Option A is the right answer. Question 27. Coins are supplied by the government of India under Ministry of Finance and are distributed by RBI on behalf of government. The given statement is true. Obviously coins होते हैं जो आपके coins plus ₹1 note. 1 rupee note plus coins are supplied by the government of India. Okay. And आपके ₹1 note पे जो sign रहता है वो sign भी finance minister का रहता है. With the reference of Basel III norms, what is the minimum capital adequacy ratio followed by Indian banks? So Indian banks follow 9% ratio, but as per the norms, it is 8%. Okay, we were on which question? Okay, as per the norms, it is 8% and India follow 9%.
Question number 29. Which of the following is not a selective credit control method? Selective credit control method means सेंट्रल बैंक ऐसे गाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक को कि एक सेलेक्टिव जगह पे वी आर गोइंग टू मेक क्रेडिट or we are giving loan to a selective sector or there is a quota rationing. Okay, so rationing of credit is a kind of a selective credit. Next is your direct action is also kind of a selective credit. Changes in margin requirement is also kind of a selective credit, and your reserve requirement is not a selective credit. So option D is right answer. What is the reserve requirement? If we say, or reserve requirement ratios, legal reserve requirement, these are your two types of ratios, CRR and SLR. Question 30. The Reserve Bank of India issues all currency notes except rupee 1 note. Rupee 1 note is not issued by your Reserve Bank of India. This is issued by the Government of India. Okay. So I guess these are the 30 questions on role of your RBI. Okay. सो वी आर डन विद रोल ऑन RBI. नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी दैट इज़ ऑन द फैक्टर प्राइजिंग योर रिकार्डियन मॉडल. उस पर नेक्स्ट हमारे MCQs रहेंगे. सो इफ एनी डाउट्स आर देयर विद दिस वीडियो रोल ऑफ ऑन RBI यू कैन कमेंट डाउन. आई विल कम अप विद द आंसर्स. सो स्टे ट्यून विद विग्जिंग उड़ान. थैंक यू.